अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश के यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस यूनिट का नाम है स्टोरीज़ ऑफ मुल्ला नसरुद्दीन। तो आइए सबसे पहले इसका वर्ड बैंक रीड करते हैं। हमारे पास 1 से लेके 18 तक वर्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं। आइए अब इसकी रीडिंग करते हैं। नंबर 1 पे है टर्किश, नंबर 2 मुल्ला, नंबर 3 होया, HODJA, ये एक मुस्लिम स्कॉलर को कहा जाता है। नंबर 4 एट्रीब्यूटेड विटी, नंबर 5 ह्यूमर, नंबर 6 कन्वर्सेशनलिस्ट, नंबर 7 अप्रोच, नंबर 8 मिसचीफ MISCHIEF, नंबर 9 प्रैंक्स, नंबर 10 क्लाइंबिंग, नंबर 11 बेस्टेंडर्स, नंबर 12 एग्जैक्टली, नंबर 13 एब्सोल्यूटली, नंबर 14 मिड्स्ट, नंबर 15 वॉन्डरिंग, नंबर 16 suspiciously, नंबर 17 sarcasm, नंबर 18 annoyed। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ कॉमन इन वर्ड मुल्ला एंड होया? आंसर, इट इज़ बेसिकली सेम वर्ड, मीन्स टीचर और स्कॉलर। होया इज़ टर्किश वर्ड एंड मुल्ला इज़ उर्दू। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ मुल्ला पॉपुलर इन इस्लामिक वर्ल्ड? Answer, he is popular in whole Islamic world because he was a famous writer and he had written almost 350 stories. Question number 3, list the characteristics of Mullah Nasruddin. Answer, he was a witty man. He knew how to deal people in a simple way. He had the ability to make the people laugh in their difficult time. Question number 4, do you think Nasruddin failed in his attempts? Explain with reference to story. Story 1. Answer, yes. Mullah Nasruddin failed in his attempts because the plan was to bring the man from the tree with safety, whereas Nasruddin's plan brought him down but with broken bones. Question number 5. Who are the important people in our society? Discuss with reference to story 2. Answer, there are two perspectives regarding important people in our society in story 2. Number 1, according to God, diplomat, minister and king have special positions. Number 2, according to Mullah Nasruddin, common people are more important. Question number 6, why was Enola annoyed by Nasruddin's remarks about the turban in story 3? Answer, Enola was annoyed by Nasruddin's remarks because he was mentioning the turban of his friend in humorous way. Question number 7. After reading the stories, what is your assessment of Mullah Nasruddin's character? Answer, basically his character is humorous with deep meaning. He addressed the social norms in critical way. He had deep personality. अब हम इसका बुक वर्क करते हैं। हमारे पास एक टास्क है सी, रीडिंग फॉर इन्फेरेंस। इसमें हमने ट्रू फॉल्स बताने हैं। नंबर ए, द बेस्टेंडर्स वर ऑल वेरी हैप्पी, ये फॉल्स है। बी, नसरुद्दीन इज़ नॉट द गेस्ट ऑफ ऑनर, ये ट्रू है। सी, एनोला वॉज हैप्पी टू गेट द टर्बन फ्रॉम नसरुद्दीन, ये भी फॉल्स है। पेज नंबर 46 पे हम ईडियम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। Idiom is a group of words in a fixed order that has a particular meaning different from the meanings of each word on its own. In story 3, an idiom go to such length is underlined as shown in the box. जैसे उर्दू में मुहावरात होते हैं, इसी तरह से इंग्लिश में जो मुहावरात होते हैं उनको हम idioms कहते हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दी गई हैं हमारे पास। ये टास्क है, फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग idioms एंड मेक सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। हमारे पास ये 5 जो हैं दिए गए हैं idioms। इन 5 के हमने मीनिंग्स लिखने हैं और इसके बाद इनके सेंटेंस भी बनाने हैं। तो सबसे पहला idiom हमारे पास है गो बैक टू स्क्वेयर वंस। इसका मीनिंग है टू स्टार्ट अगेन टू ओरिजिनल पॉइंट। इसका सेंटेंस हम बनाएंगे, आई हैड टू रीलर्न द गेम फ्रॉम बैक टू स्क्वेयर। नंबर 2, गो ऑन रिकॉर्ड। इसका मीनिंग है टू स्टेट समथिंग पब्लिकली। सेंटेंस, everything that is said between them will go on record. Number 3, go out of your mind, meaning irritation. इसका सेंटेंस है, all of this noise in the house day in day out, I feel like I am going out of my mind.
Number 4, go over the top, meaning something extreme. Sentence, the arrangements for the party was way over the top. Number 5, go weak at the knees, meaning lose your strength. Sentence, when they called me on stage, I went weak in the knees. नेक्स्ट टास्क हम पेज नंबर 47 पे करेंगे, जो कि है प्रोनाउन. अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन से कहते हैं जो कि किसी नाम की जगह इस्तेमाल होता है. जैसे कि अगर हम अली या शाजिया की बात कर रहे हैं तो हम हर जुमले में उनका नाम नहीं लेंगे, बल्कि उसकी जगह उसका, उसने या उसने इस तरह से किया, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि इंग्लिश में हिज, हिम, हर, शी, आई, यू, वी, ये सब प्रोनाउंस हैं. अब हमारे पास 4 किस्म के प्रोनाउन उसने बताए हैं. सबसे पहले है सब्जेक्ट प्रोनाउन. ऐसा प्रोनाउन, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. सब्जेक्ट प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स दैट आर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज. किसी भी सेंटेंस का जो एक सब्जेक्ट होता है, उसके नाम की जगह जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं. अंडरलाइन द सब्जेक्ट प्रोनाउंस. अब हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस को अंडरलाइन करेंगे. आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, इसमें हम आई को अंडरलाइन करेंगे, नेक्स्ट में यू को, उसके बाद ही, उसके बाद दिस और लास्ट में वी को. दूसरा है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिप्लेस नाउन्स दैट आर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. इसमें भी प्रोनाउन किसी शख्स के नाम की जगह ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ये इनडायरेक्टली इस्तेमाल होता है और ये मोस्टली वर्ब के बाद आता है. गिव द बुक टू मी. इसमें मी को हम अंडरलाइन करेंगे, वर्ब के बाद आ रहे हैं. पहले वाले में जो सब्जेक्ट प्रोनाउन था वो वर्ब से पहले आता है, यानी किसी भी काम होने से पहले जिसका जिक्र किया जा रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं, और जिसका वर्ब के बाद जिक्र आता है उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं. तो सेकंड वाले में द टीचर वांट्स टू टॉक टू यू, इसमें यू को अंडरलाइन करेंगे, इसके बाद हर, नेक्स्ट वाले में हिम, उसके बाद इट, देन अस और लास्ट में देम. इसके बाद है पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव प्रोनाउन रिप्लेस पोजेसिव नाउन्स एज ईदर द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज. बिकॉज द नाउन बीइंग रिप्लेस्ड डजंट अपीयर इन द सेंटेंस, इट मस्ट बी क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. जब हम किसी चीज़ की मलकियत को जाहिर करते हैं कि ये चीज़ उसकी है या मेरी है, ये तुम्हारी है, तो उसको हम पोजेसिव नाउन कहते हैं. यहाँ पर जो हमारे पास सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें सबसे पहले हम माइन को अंडरलाइन करेंगे, फिर योर्स को, हिज, हर्स, आवर्स और देयर्स को अंडरलाइन करेंगे. लास्ट पे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाइक अदर प्रोनाउंस रेफर बैक टू द सब्जेक्ट और द क्लॉज. ये किसी भी चीज़ का उससे अपने साथ ताल्लुक़ को जाहिर करता है, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ. तो इन सेंटेंसेस में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं वो सेल्फ के साथ लगे हुए वर्ड्स हैं, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ और इस तरह से बाकी सारे. तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इंग्लिश का यूनिट नंबर 4 अपने पास नोट कर लिया होगा. क्वेश्चंस को याद भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये लेसन्स पहुँच सकें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.